So today we shall be start discussing some of the antifungal agents or the drugs which act against fungal infections. Now, this before this discussion, you all were studying antibiotics. So antibiotics were some very beautiful agents which were working against bacterial infections. Now, this area of antifungal agents is something different. Before studying the main drugs, what are the different antifungal drugs? You should know about different fungal infections. What are the different fungi which are causing diseases in animals and as well as human beings? So only then we can appreciate different antifungal agents and what are the. So before starting all these things, uh, just like antibacterial agents or antibiotics, at that time, madam might have discussed that antibacterial agents may be bactericidal or bacteriostatic. Similarly, antifungal agents or the drugs which act against fungi, they may either cause growth inhibition of the fungal cells or they may kill fungal cells. Accordingly, we can say agents which agents which kill fungal cells, they'll be called as fungicidal drugs, which destroy the parasitic fungi. And obviously, many more antifungal agents are fungistatic agents because they inhibit the growth, they prevent the growth and multiplication of the fungi. So how it happens, why some agents are fungicidal and some agents are fungistatic, it all depends on their mechanism of action, how the drug is inhibiting or destroying the fungal cells. So if the mechanism of action is something which kills the microbes or the fungi, in that case it will be fungicidal. Or if the mechanism of action is something which is simply arresting the growth of the fungal cells, in that case it will be fungistatic. Obviously, if it is fungistatic also, at least it will prevent the further growth of fungal infection, and in due course of time, when they'll die due to aging and all other mechanisms, the fungal infection may be cured in long run. So before doing all these things, just moments, there are some people who are waiting. Okay, so we should know, because what is your target? Your target are the fungal cells, and you should know the basic characters of fungal cells. Only then you can target for destroying them by administration of antifungal agents. So as you all know that unlike bacterial cells, these fungi are eukaryotic cells. They have well-defined nucleus and cell organelles, and you have definite targets where your drugs can target. Now, these fungal cells, the majority of the fungal cells, they are saprophytic or parasitic in nature, because they obtain food from dying or decaying environment. So these fungal cells exist in the environment as either unicellular organisms, just like yeast cells or yeast-like cells. Some of the fungi are Candida or Cryptococcus, or they may exist as multicellular organisms also. Multicellular organisms in the form of filamentous or moldy colonies, and like Microsporum, Trichophyton, Mucor, Rhizopus. These are multicellular filamentous fungi, which will grow their hypha will grow continuously, and will these fungal infections will grow accordingly. And some of the fungi, they can assume in any form. They can become as unicellular yeast form also in cases of adversary, or they can grow as filamentous forms also, like blastomycosis, hystomycosis, coccidioides, and sporothrix, and lot many. So why we have discussed all these things, that fungi, they can be unicellular, multicellular, filamentous, or a combination of both.
So when we design targeting these organisms or the fungi by administration of antifungal agents, we have to target accordingly. Now, if we see the structure of fungal cells, fungi have a cell wall. Like bacteria have had a cell wall, but the composition of cell wall is different. The cell wall is primarily composed of polysaccharide. And what is the polysaccharide cell wall in fungal cells? Anybody can answer? What is the cell wall, nature of cell wall? Or this? Chitin. Chitin. Yes, it is Chitin. chitin. So it is something different from the, Chitin. right, right, right. So it is something different from the bacterial cells or the others. And fungal cell membrane is also slightly different from the bacterial cells or other eukaryotic cells also, because fungal cell membrane, obviously it is bilayer of lipid, and it contains, the lipid is not cholesterol or not other, it is rather it is ergosterol. So the lipid in fungal cell membrane is different. Now, when we, because these fungal infections, they are in our body. They are either as superficial, infections, or they are either as subcutaneous or regional lesions, or they are either as systemic fungal infections. So these fungal cells, they are present over your body or the animal's body. And you have to target these fungal cells by administration of antifungal agents, so that only the fungal cells selectively are killed or inhibited, not your mammalian cells or not the host body cells are inhibited. So what is required? The antifungal agent has to work selectively. It has to kill or inhibit the growth of the fungal cell only, not the host cell. So in chemotherapy, you might have studied in antibacterial agents or antibiotics, these inhibit only, say for example, if I am taking penicillin, so this will inhibit only streptococci or the staphylococci only, not my mammalian cells. So there was selectivity in response. What is the very basis in chemotherapy? That all these chemotherapeutic agents are selectively acting. Either they are acting towards the bacteria or the fungus or the virus or the protozoa or the parasites, not to the host cells. So this is the very basis of chemotherapy. Coming back to the fungal type of fungal diseases, also we should know, because once we have to kill the fungal cells, we should know where they are located. They can be located over the skin as superficial infections, like there are a lot of dermatophytes or dermatomycotic infections are there, like trichophyton, microsporum, or epidermophyton. You all you may be knowing that ringworm infections. Ringworms, they are fungal, topical fungal infections, or the superficial fungal infections. They are also called as tinea. Different sort of tinea infections are there. If they are in your foot, it will be called as tinea capitis or tinea ped. So a lot of accordingly nomenclature is there. And these, apart from these dermatophytes, there may be candida infections also. They are also present over the mouth or the mucosal surfaces or over the skin. So these are the superficial infections. And once infections are present superficially, we can apply antifungal agents either topically in the form of ointments or lotions or like that, or we can apply as injections also. We can give injections also, so that the drug is made available in the systemic circulation, and from there it will go to the cutaneous circulation and it will act. Apart from superficial infections, there may be the fungal cells may invade to your subcutaneous tissue also. Beneath the skin also, the fungal hypha or the fungal mycelium can grow there. So in that case, by simply giving as topical application, it will not work. In that case, you have to give the antifungal agent by systemic administration, by either oral tablets or by injections.
And because once you give as topical application, only 5 to 10% of the drug is absorbed, remaining are present over the skin only. And the third category is systemic fungal infections like Aspergillus. It can grow in the lungs also. It can grow because post-COVID manifestations, one of the important post-COVID manifestation or complication is mycotic infections in lungs. So once these fungal infections have invaded in your lungs or your internal organs, how will you treat them? You don't have any other alternative apart from giving them as systemic injections or by giving them by systemic routes in the form of oral tablet or capsules. So fungal infections can be varied. It can be superficial, subcutaneous, or systemic infections. Now coming to the range of drugs, what we are having and how we will be treating them. So we have nowadays we have a lot many agents which act as antifungal agents, and we can classify them. We can classify them in first of all in 2 or 3 categories. The first category will be I'm making the screen white and I'll be writing something so that you can understand. So the first category is we can say they are antibiotics. So the first category is antibiotics, and okay. So the first category is that of antibiotics. Antibiotics means they are who will define antibiotic? Anybody? What is antibiotic? Make it fast. Anybody? Akriti, Jiten, Rajesh? Yes, one by anybody. It is against the life of bacteria. Only one will answer at a time. Akriti, please say what is antibiotic? The chemical substance which is obtained by microorganisms and used to kill or inhibit the growth of other microorganisms. Right. So what is the specialty in antibiotics? They are natural organisms. They are derived from natural sources. They are derived from some organisms. Either the source organism is some fungus or bacteria or some other organism. So, but sir, no, it is some antibiotics yes, also synthetic flavor. Yes. But no, सर अभी तो कुछ ऐसा भी एंटीबायोटिक है जो सिंथेटिक भी अवेलेबल है. हाँ, सेमी सिंथेटिक भी है. अवेलेबल अभी है, कहाँ से है ये इम्पोर्टेंट नहीं है. शुरू में या इनिशियली it was obtained from some natural source. Okay, जैसे कि tetracycline है. Tetracycline was obtained from some Streptomyces species. अब नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करने में फायदा और नुकसान क्या है कि वी हैव टू ग्रो द कल्चर. अगर कोई जैसे पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम फंगस या क्राइसोजेनम फंगस से ऑब्टेन हो रहा है, तो अब हमें ऑब्टेन करने के लिए उस फंगस को ग्रो करना होगा, वो उनके बैच कल्चर या वैट कल्चर्स लगाने होंगे, और उनके ये फंगल सेल्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. मतलब जब अच्छे से ग्रो कर जाएगा तो थोड़ी देर बाद फिर कुछ सर्टेन टाइम के बाद उसके एक्सट्रैक्ट से हम इनको फिर आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे. तो दैट्स व्हाई दीज एंटीबायोटिक्स आर कॉस्टली. जैसे पेनिसिलिन जो हैं वो गवर्नमेंट ने इनको इसेंशियल ड्रग में रखा है, सब्सिडी देकर रखा है, फिर भी ये ऐसा नहीं कि इनके टैबलेट 1-2 रुपए 50 पैसे में नहीं आते हैं, और इनके इंजेक्शन जो है वो 100-150 रुपए के ही आते हैं, क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं वो थोड़े से ओरिजिनल फंगल सेल्स को ग्रो करके, और हमें अगर 1 ग्राम 2 ग्राम मिल रहा है एंटीबायोटिक तो काफी फंगल सेल्स को ग्रो करने से मिल रहा है. तो लोगों ने सोचा कि कैन वी सिंथेसाइज दीज केमिकल्स, दीज एंटीबायोटिक्स इन द लैबोरेटरी डायरेक्टली बाय केमिकल सिंथेसिस. So not all antibiotics have been synthesized chemically till date, and penicillins are one of them. But tetracyclines का केमिकल सिंथेसिस हो गया, इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है, या फिर टेट्रासाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ये सारे जो हैं
वो बड़े सस्ते हैं, उनका 1 रुपया, डॉक्सीसाइक्लिन 2 रुपया, 3 रुपए के टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं, क्योंकि नाउ दे आर नो मोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम नेचुरल सोर्स, दे आर सिंथेटिक, दे हैव बिकम सिंथेटिक, बट सिंथेटिक जो बन रहा है उसका केमिस्ट्री सेम है जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा था। स्टिल टेट्रासाइक्लिन्स विल बी कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स, क्योंकि उनका ओरिजिनल सोर्स जो है सम ऑर्गेनिज्म है। तो ये अलग बात है कि हमने अपने सुविधा के लिए उसको लगा कि नहीं भाई हम तो खुद यहाँ लैब में ही बना सकते हैं, क्योंकि उधर फिर भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जो महंगे वाले हैं वो अपने ओरिजिनल सोर्स से ही ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। चलो, तो एंटीबायोटिक्स इन्हें बोल रहे थे। एंटीबायोटिक्स जब भी वर्ड आता है, कहने का मतलब है कि किसी न किसी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है और ऑब्वियसली किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करेगा। तो फर्स्ट जो सोर्स है वो है एंटीबायोटिक्स, मतलब ये ऑल दीज आर नेचुरल एजेंट्स और ऑल दीज आर डिराइव्ड नेचुरली। नेचुरली डिराइव होने का एक और मतलब हो सकता है, एक फायदा हो सकता है कि उनका साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, उनकी टॉक्सिसिटी कम होना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रहे हैं। हमने लैब में प्योरली केमिकली सिंथेसाइज नहीं किया कि उसका कोई साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो सकता है। बट ये कुछ हद तक सही है, कुछ एक एजेंट्स, कुछ एक एंटीफंगल एजेंट्स इस फॉर्मूले को नहीं मानते हैं और उनकी टॉक्सिसिटी भी है। तो इसमें जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पहला कैटेगरी है पॉलीन्स है। पॉलीन्स क्या है? एक केमिकल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट है जो पॉलीन्स बोल रहे हैं। इसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और हेमिसिन और कुछ एक एजेंट्स हैं जो इसके अंडर कैटेगरी में आते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इनमें, ये नाम है, नाम सुनिए, जैसे टिंकू बिंकू पंटी जो है, इस तरीके से इनका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हेमिसिन। अभी फॉर द टाइमिंग आप नाम याद रखिए, क्यों नाम पड़ा है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग आगे के क्लासेस में उनको स्टडी करेंगे। तो पहला एंटीफंगल एंटीबायोटिक था पॉलीन्स। द सेकेंड क्लास जो है वो है एक है ग्रीसियोफल्विन। इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है, ये हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान कंपाउंड्स हैं। ग्रीसियोफल्विन काफी यूज होता है। और द थर्ड कैटेगरी है इकाइनोकैंडीन्स। इसमें है कैस्मोफंजीन है, मीकाफंजीन है, न्यूडोलाफंजीन, ये सारे हैं। कैस्मोफंजीन इसमें काफी यूज होता है। तो ये सारे जो कैटेगरी थे एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स, ये इतना एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी थी। और नेचुरली डिराइव्ड इतना ही एजेंट्स हैं जो डायरेक्ट किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं ऑल आर सिंथेटिक, जो डायरेक्टली किसी न किसी केमिकल को मिक्स करके बनता है और प्योरली सिंथेटिक है। तो उसमें देखें, अब उसमें कुछ एक एजेंट्स हैं। पहला कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसको, इसका एक एग्जांपल है फ्लूसाइटोसिन। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फंगल सेल के मेटाबोलाइट, किसी न किसी मेटाबोलाइट को ब्लॉक करता है, इसलिए उसको एंटी मेटाबोलाइट बोल रहे हैं। इनका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां क्लियर होगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट एजेंट है फ्लूसाइटोसिन। और एक वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक क्लास है एजोल्स, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंटीफंगल एजेंट्स हैं। इवन एंटीफंगल एंटीबायोटिक से भी ज्यादा यूज होने वाला है। क्यों ज्यादा यूज होते हैं? पहला वजह है सस्ते हैं, क्योंकि केमिकली सिंथेसाइज्ड है। और दूसरी वजह है कि इनका जो एंटीफंगल स्पेक्ट्रम है कि किस किस फंगस को मार सकता है, किल कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है, ये काफी ब्रॉड है। अब इसमें एजोल्स में दो टाइप के एजोल्स हैं, एक इमिडाजोल है, एक है ट्रायाजोल है। इनकी स्ट्रक्चर जो है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, इस वजह से एक इमिडाजोल है, एक ट्रायाजोल्स है। इमिडाजोल्स में कुछ एक टॉपिकल एजेंट्स है जिसको हम स्किन के ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशन या म्यूकस सरफेस पे ही लगा सकते हैं। इसमें है क्लोट्राइमाजोल है, इकोनाजोल है, मीकोनाजोल है, ऑक्सीकोनाजोल है। सब में जोल लगा हुआ, कोनाजोल, कोनाजोल, इस टाइप के ये सफिक्स एडेड। और कुछ एक सिस्टेमिक एजेंट्स हैं, एक है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल के भी कुछ खासियत हैं, कुछ साइड इफेक्ट हैं जो हम लोग जब इनको डिस्कस करेंगे वहां बताएंगे। और कुछ ट्रायाजोल्स हैं, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लूकोनाजोल। हम लोग किसी स्किन स्पेशलिस्ट को रेफर करेंगे तो हो सकता है कि
3 या 4 प्रिस्क्रिप्शन में 3-4 पेशेंट्स में किसी ना किसी को वो फ्लूकोनाजोल का टैबलेट जरूर प्रेस्क्राइब करे। तो फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, वोरिकोनाजोल है, या इस तरीके के अदर एजेंट्स हैं जो ये सारे जो हैं एजोल एंटीफंगल एजेंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है एलिल एमीन, इसमें टर्बिनाफिन है, ये भी यूज होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स हैं जो प्योरली टॉपिकली यूज होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। जैसे एक है बेंजोइक एसिड, बहुत सारे आपको ऑइंटमेंट्स हैं, बहुत सारे एंटीफंगल ऑइंटमेंट्स हैं जिसमें बेंजोइक एसिड मिला हुआ रहता है। बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड और सो मेनी कंपोनेंट्स उसमें, सोडियम थायोसल्फेट या फिर टोनाफ्लेट, ये सारी चीजें उसमें एडेड हैं। तो ये सारे टॉपिकल क्रीम्स जो जितने हैं, एंटीफंगल क्रीम्स हैं, एंटीफंगल लोशंस हैं, उनमें ये एडेड होंगे। अब थोड़ा सा इनका डिटेल देखें, एक बार इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने की कोशिश करें कि ये कैसे काम करते हैं, फंगल सेल्स पे कहाँ क्या काम करते हैं। तो मान के चलें कि ये फंगल सेल है, फंगल सेल हाइफा है, माइसीलियम है, जो एक चैम्बर एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, फंगल सेल को। इसको अगर जूम करके हम प्लॉट करें तो एक फंगल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फंगल सेल वॉल है, ठीक है। और सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर डीएनए है, ये माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टम है। जो काम की चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट, जिसपे हमारे एंटीफंगल एजेंट्स टारगेट करते हैं, उनको सेल में दिखाया गया, अदर सेल ऑर्गेनल्स को डिस्प्ले नहीं किया गया है, क्योंकि वो हमारे इमीडिएट टारगेट्स नहीं है फॉर एंटीफंगल एक्शन। अब इसमें जो आपको क्लासिफिकेशन अभी आपको बताया, तो उसमें एक बताया एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स में ग्रीसियोफल्वीन बताया। तो ग्रीसियोफल्वीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फंगल सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टम है, किसी सेल, यूकैरियोटिक सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो माइटोसिस के समय में या सेल डिवीजन के समय में जो डिवाइडेड न्यूक्लियाई हैं उनको डिफरेंट पोल्स के पास ड्रैग करते हैं, खींच के ले जाते हैं, और बीच में फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे। तो ये ग्रीसियोफल्वीन क्या करेगा, ग्रीसियोफल्वीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम है फंगल सेल्स का, उनको ब्लॉक करता है, उनको डिसओरिएंट करता है, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पोल होगा, कि ताकि दोनों पोल उसको खींच रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो उनके जो क्रोमैटिन मटेरियल है जो डिवाइडेड, वो अलग अलग पोल्स पे चला जाए और सेल का डिवीजन स्टार्ट हो सके। तो ये ग्रीसियोफल्वीन क्या करेगा, उनका ओरिएंटेशन खराब कर देगा, पोल की तरफ नहीं होगा, अलग ओरिएंटेशन कर देगा। और प्लस सेकंड जो है, इनका पॉलीमराइजेशन, इनका कंडेंसेशन को खराब कर देगा। तो अब इनका क्या है कि सेल का जो क्रोमैटिन मटेरियल का जो स्प्लिटिंग है वो बंद हो जाएगा और सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। और जो बहुत दिन के बाद, मान लो कि ग्रीसियोफल्वीन हमने 30 दिन या 40 दिन तक हम टैबलेट खिलाया उसका, तो फंगल सेल जो है जहां पे है वहीं पे उसकी सेल अरेस्टेड होगी और स्टंटेड ग्रोथ होगा और फर्दर ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसका ग्रीसियोफल्वीन का जो है वो एंटीफंगल एक्शन है। और आप अब बता सकते हो कि ये ग्रीसियोफल्वीन का जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, उसकी वजह से ग्रीसियोफल्वीन फंगीसाइडल होगा या फंगीस्टैटिक होगा? कौन बताएगा? मैकेनिज्म बताया, स्टैटिक्स होगा। क्या होगा? स्टैटिक होता होगा, फंगीस्टैटिक होगा, क्योंकि डायरेक्ट मारने वाला तो कोई काम कर नहीं रहा है, सेल तो है ही, पेरेंट सेल है वहीं पड़ा हुआ है, ग्रो, उसको मल्टीप्लाई नहीं करने दे रहा है, तो डायरेक्ट किलिंग एक्शन नहीं है, इसलिए फंगीस्टैटिक एजेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग चले यहाँ पे, एक है एम्फोटेरिसिन बी ऊपर में। ये देखो यहाँ ग्रीसियोफल्वीन का दिखाया है कि निगेटिव या इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टम को, यहाँ पे लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टम। एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, एम्फोटेरिसिन बी जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एरो निगेटिव दिया हुआ है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को कुछ ना कुछ वैसा करता है। इसके सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो कौन सा लिपिड है? फंगल सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कौन सा है? मैंने बताया, यस, इट इज एर्गोस्टेरॉल। हमारे सेल्स में इट इज कोलेस्ट्रॉल या अदर टाइप के फॉस्फोलिपिड्स हैं, इसका फॉस्फोलिपिड है एर्गोस्टेरॉल।
तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, अर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। तो अगर सिंथेसिस नहीं होगा तो भाई इसके सेल मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, क्योंकि जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, कंस्टिट्यूएंट्स अगर नहीं फॉर्म हो तो सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं होगा, और उसके बाद अगर उनमें पोर्स हो गया तो इसके जो वाइटल इंट्रासेलुलर कंटेंट्स है वो लीक करके बाहर आ जाएंगे, सेल फट जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो अब बताइए एम्फोटेरिसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फंगिसाइडल है या फंगिस्टैटिक है? अगर गोली मार दे या सारा ब्लड बाहर निकल जाए तो फंगिस्टैटिक होगा कि फंगिसाइडल? यस प्लीज। फंगिसाइडल। यस, एम्फोटेरिसिन का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फंगिसाइडल है, फंगिस्टैटिक नहीं है, क्योंकि सारे सेल वाइटल सेल कंटेंट्स लीक कर जाते हैं बाहर, क्योंकि उसमें छेद हो गई, पोर्स हो गए। ठीक है, और टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ब्रीफली बताएंगे और फिर डिटेल में इंडिविजुअल ड्रग्स आएंगे अभी 1-2 क्लास में, तो वहां डिटेल करेंगे। नेक्स्ट जो इकाइनोकैंडीन्स हैं, एजोल्स हैं, टर्बिनाफिन है, या ये सारे, ये जो अर्गोस्टेरॉल, ये जो लिपिड है, जो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है अर्गोस्टेरॉल, इनका सिंथेसिस फंगल सेल में स्क्वालिन से होता है, स्क्वालिन कन्वर्ट होता है लैनोस्टेरॉल में, और वो लैनोस्टेरॉल फाइनली कन्वर्ट होता है अर्गोस्टेरॉल में। तो अर्गोस्टेरॉल के डिफरेंट सिंथेटिक जो स्टेप्स हैं उनको इकाइनोकैंडीन्स या एजोल्स हैं या टर्फिनाफिन या ये सारे जो एंटीफंगल एजेंट्स हैं, ये सारे इनहिबिट करते हैं। तो कहने का मतलब एम्फोटेरिसिन तो डायरेक्टली उस पर एक्ट कर रहा है, डायरेक्टली जो फॉर्म्ड अर्गोस्टेरॉल है उस पर, बट ये सारे जो हैं वो इनके डिफरेंट सिंथेटिक स्टेप्स को इनहिबिट करते हैं। तो अल्टीमेटली इनका भी एक्शन जो है वो ये सारे भी फंगिसाइडल होंगे, ये भी फंगस के ग्रोथ को अरेस्ट करेंगे। फिर एक है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन जो है वो फंगल डीएनए के रेप्लिकेशन को जो है वो ब्लॉक करता है। इसके बाद एक वीडियो है, थोड़ा इसको देखेंगे। दो 3 मिनट की वीडियो है, एक देख लीजिए इसको। So आज का डिस्कशन इतना ही तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिविजुअल ड्रग्स को 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत